हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम लोग अपने 12th चैप्टर में फर्स्ट कैंटो के, जहाँ पे परीक्षित महाराज के जन्म के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। सो अभी हम लोग लास्ट सेक्शन में रहेंगे, जहाँ पे परीक्षित महाराज के बारे में, उनके ग्रोथ और उनका सेक्रीफाइस युधिष्ठिर महाराज के बारे में वहाँ पे चर्चा होने वाली है। ये हम लोग सवाल किया गया वापस, सौनक ऋषि ने सवाल किया सूत गोस्वामी को कि परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। तो स्टार्ट हुआ युधिष्ठिर महाराज के जो क्वालिटीज है उनसे डिस्क्राइब होके बाद में परीक्षित महाराज पे आए। सो वहां पे आने के बाद देन दे स्पोक अबाउट, जो ब्राह्मण वहां पे इकट्ठे हुए थे उन्होंने उनके बारे में बताया, उनके क्वालिटीज किस तरह से है करके, और ये भी फोरकास्ट किया कि इनकी जब मृत्यु होगी कैसी होगी करके, वो भी फोरकास्ट किया यहाँ पे। मृत्यु के वक्त उनकी जो क्वालिटीज रहेगी, जो वो सब त्याग देंगे, उसको यहाँ पे बताया गया है। एंड उसके पास्ट के बारे में भी, पास्ट दर्शन जब वो वूम में थे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया कि कैसे उन्हें भगवान ने उनको बचाया उत्तरा के कोक से, उत्तरा कोक में ब्रह्मास्त्र से, तो उसका भी उन्होंने वर्णन किया। And then हम लोग थे, ये भी हुआ लास्ट टाइम हमारा, काफी सारे क्वालिटीज अलग अलग महाराजों के बारे में बताया, ययाति और काफी भी महाराज, इन सब के बारे में बता, उनके जो क्वालिटीज है इनमें भी रहेंगे परीक्षित महाराज में। एंड देन दिस इज अ स्लाइड। Rohit, do you want to take up this slide? Yes, Prabhu. Srimad Bhagavatam 1.12. Thus, those who are expert in astrological knowledge and in performance of the birth ceremony instructed King Yudhishthira about the future history of his child. Then, being sumptuously remunerated, they are returned to their respective homes. So his son would become famous in the world as Parikshit examiner, because he would come to examine all human beings in his search after their personality, whom we saw whom he saw before his birth. Thus we would come to constantly contemplate him as the moon in its waxing fortnight develops day after day. So the royal prince Parikshit were soon developed luxuriantly under the care and full facilities of his guardian grandfathers. Just at this time, King Yudhishthira was considering performing a horse sacrifice to get freed from scenes incurred from fighting with kingsmen, but he became anxious to get some wealth, for there were no surplus fund outside of fines and tax collection. Understanding the hearty wishes of the king, his brother, as advised by the infallible Lord Krishna, collected sufficient riches from the north, left by King Mathura. By those riches, the king would procure the ingredients for 3 horse sacrifices. Thus, the pious king Yudhishthira, who was very fearful after the battle of Kurukshetra, pleased Lord Hari, the personality of Godhead. The Lord Krishna, the personality of Godhead, being invited to the sacrifice by Maharaja Yudhishthira, saw to it they were performed by qualified twice born Brahmanas. After that, for the pleasure of the relatives, the Lord remained a few months. O Sonaka, thereafter the Lord, being bade farewell to King Yudhishthira, Draupadi, and other relatives, started for the city of Dwarka, accompanied by Arjuna and other members of the Yadu dynasty. बोल, थैंक यू रोहित। तो यहाँ पे
29th वर्ष में प्रभुपादा बोलते हैं, उन्होंने पर्पट में बोला, सो ये था कि 10 दोज हु आर एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बर्थ सेरेमनी इंस्ट्रक्टेड किंग युधिष्ठिर अबाउट द फ्यूचर हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड, देन बीइंग sumptuously remunerated they all returned to the respective homes. So last श्लोकास में भविष्य के बारे में बात किया था. तो यहाँ पे प्रभुपाद पर्पट में बोलते कि वेदास आर द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, बट सच नॉलेज एम्स एट perfection of the self realization. In other words, the Vedas are the guides for the civilized men in every respect. Usually ये आचार्य कहते हैं कि जो वेदों के हिसाब से चलते हैं, they are men, they are civilized, they are human beings basically, जो वेदों के हिसाब से चलते हैं. लेकिन जो वेदों के हिसाब से नहीं चलते, they are as good as animal, they are leading an animal life. जैसे प्रभुपाद बोलते थे टू लेगेड एनिमल. तो उनकी जो बाकी जो एनिमल्स की तरह जो ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग और डिफेंडिंग करते हैं, तो वैसे ही हम लोग इंसान के रूप में हम लोग भी वही करते हैं. इतना ही फर्क है कि हम लोग को मनुष्य का शरीर मिला है, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर वेस्टिंग इट. हम लोग उसमें इट इज लाइक हमें फरारी मिला है और हम फरारी को गलियों में डाल के वो जहाँ पे पत्थर ऊपर नहीं वहां पे गाड़ी चलाने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर फरारी को हम लोग पैसेंजर को अपने घर पे ड्रॉप करने के लिए ऑटो रिक्शा से यूज कर रहे हैं. तो ऐसा हो गया अपना हालत. फरारी को चलना चाहिए वो स्पोर्ट्स में, राइट, जहाँ पे रेसिंग होता है, F1 में चलना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली वी आर लाइक दैट, जहाँ पे मनुष्य का शरीर हमें इस जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर आने के लिए यूज करना चाहिए. अपना फरारी है, वो उसको F1 के ट्रैक पे चलाना चाहिए. दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ इट. लेकिन अनफॉर्चुनेट हम लोग ऑटो रिक्शा ऐसा हम लोग सिर्फ जीवन मृत्यु मतलब ईटिंग मीटिंग वही उसमें हम लोग गोल 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 घुमा के उसको वेस्ट कर रहे हैं. तो जब इंसान वेदों को फॉलो करता है तो वो यही चीज करता है, बट ही डज इन ए मोर सिविलाइज्ड वे. द रीजन रेस्ट्रिक्शन, और ये रेस्ट्रिक्शन का रीजन इसलिए बिकॉज दिस रेस्ट्रिक्शंस देन स्लोली हमारा जो इंटरेस्ट है ये भौतिक संसार में वो धीरे धीरे कम करता है. क्योंकि सब लोग भक्ति के पास भक्ति करना स्टार्ट नहीं करेंगे. नो वन विल टेक अप टू भक्ति इमीडिएटली, राइट. अगर किसी को हम लोग बोलेंगे चलो ये भक्ति, हम लोग खुद एक्सपीरियंस हमारे घर में, हमारे मतलब रिलेटिव्स में अगर हम लोग देखते दोस्तों को, हम लोग बोलेंगे अरे चलो भक्ति स्टार्ट कर, कोई करेगा नहीं. बट देन व्हेन यू से कि हाँ दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन, इफ यू वांट टू एंजॉय, दिस इज हाउ यू शुड एंजॉय, दिस इज हाउ यू शुड अर्न मनी. क्योंकि इसके बाहर जाओगे then there will be negative impact on you, maybe hellish planets या उसका सीन करोगे. तब जब इंसान इस फ्रेमवर्क में अगर काम करता है तो एक लेवल के बाद क्या होता है, जब हम लोग रेस्ट्रिक्शन के साथ एंजॉयमेंट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं जो शास्त्रों में लिखा गया, दे आर डिजाइन इन सच ए वे, डिजाइन बाय लॉर्ड हिमसेल्फ इन सच ए वे कि हम लोग का जो इंटरेस्ट है इन एंजॉयिंग आवर सेंसेस, इट स्लोली डिमिनिशेस, वो कम होते जाता है. And gradually we come to the conclusion that there is something more to human body than does enjoyment. जब enjoyment हमारा कम हो जाएगा तब हमें वो वहां पे साक्षात्कार होना स्टार्ट हो जाएगा कि इससे भी बड़ा कुछ तो है. And then we come to different levels. एक दो हम लोग इधर depending on inclination, इधर we come to ब्रह्म ज्योति की तरफ जाते हैं, ब्रह्मन रियलाइजेशन के, या फिर ध्यान योग में आते हैं, या फिर अगर साधुओं का संग रहेगा एंड वी आर लकी इनफ देन वी गो टू भक्ति योगा. सो वी आर ऑल ऑन द पाथ ऑफ भक्ति योगा. साधका करके है, लॉन्ग वे टू गो, बट एज आई कीप सेइंग वी आर रियली फॉर्चुनेट कि हम लोग वो लेवल तक है. आई मीन वी हैव गॉट ए ह्यूमन बॉडी, ठीक है. आई मीन फर्स्ट वी हैव गॉट ए बॉडी, नहीं तो हम लोग भूत प्रेत या हेलिश प्लैनेट्स में नहीं है. वी हैव गॉट ए बॉडी. On top of that, we have got a human body. On top of that, we are in a association. We had got interest to know there is something beyond just this eating, meeting, sleeping, and defending. We have started self-realization, or self-realization maybe we have started doing bhakti yoga. Bhakti yoga maybe we have got associations of the devotees here and there. satsang में वहां पे भी हम लोग उस युग में है जहां पे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण स्वयं आए थे. जब 10,000 साइकिल में से एक साइकिल में माँ कृष्ण आते, और वही साइकिल में हम लोग पैदा हुए.
और 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे, जो 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 स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो इतने सारे और काफी सारी चीजें हैं, बट इतने सारे भी हम लोग अगर देखेंगे तो सोचेंगे यार अपना जो कॉम्बिनेशन है अभी जो है रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है। एक तो ह्यूमन बॉडी सबसे रेयर है, उसमें भी जो कृष्णा के वक्त हम लोग आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु 500 साल बाद है, शिला प्रभुपाद की मर्सी मिली है, घर पे बैठे हम लोग को सब ये खुद चल के वहां पे डिवोटीज पकड़ पकड़ के हमें लेके जा रहे हैं। यूजुअली हम लोग को जाना पड़ता, पहले के इसमें युग में देखेंगे तो लोग ढूंढते थे गुरु कहाँ पे, जंगल में यहाँ पे घूमते थे। यहाँ पे डिवोटीज आके घर घर पे आके प्रचार करते हैं, लोगों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालते हैं। सो वी आर इन ए वेरी 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 फॉर्चुनेट रेयर कॉम्बिनेशन सेटिंग में हम लोग। एंड इफ वी इवन मिस दैट, then that would be the most unfortunate of all the things. I mean, while I'm saying that, I'm also not, I have not yet realized how rare this is, while I know that intellectually, लेकिन उसको अब तक implementation में डाला नहीं। So we all have to actually give it thought again कि यार इतना rare setting वापस कभी मिलेगा नहीं। If we say कि यार मेरे में, let's say कि मेरे में singing की कला या dancing की कला है, वो भी waste हो जाएगा। I mean, we can use it in the service to Krishna, but if our art is such that it cannot be used in service to Krishna, let's say, ऐसा होता है, फिर भी if we get a human body, we will never get a human body again. We will be missing it, and if we get it, there are possibilities that you may get this art again. I mean, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे. It is not the thing that rare है, correct. कोई भी develop करके हो सकता है किसी के interest के हिसाब से, but getting devotees association is something really very rare. That cannot be developed. You have to be very fortunate. You have to get the mercy of Krishna to actually get the association of the devotees. So we have to be, we have to think through this, and we have to what I can say, we have to take the best, जैसे प्रभुपाद बोलते, the best use of the bad bargain. Bad bargain मतलब we are in this material world, but we have to make best use of it. By, since we have got this human body, we can use it in service to Krishna. So Shastra je to Vedas to je the, those were for civilized men. So these people are called otherwise, if you are declaring, you're going on your own speculations, ये वैसे ही होना चाहिए, मैं ऐसे करूँगा, वेदास किसने देखा, then you're basically leading a animal life. The specific intelligent class of men who were devoted particularly to the knowledge of the Vedas were called the Vipras, or the graduate of the Vedic knowledge. So there are different branches of knowledge in Vedas, of which astrology and pathology are two important branches necessary for common men. So Vedas, while they guide us कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, but at the same time they also have different streams of Vedic science that supports this concept of going back to Krishna. So this may not directly seem to be astrology or pathology में क्या है, but when you look at it as at Ayurveda, when you look at it, वो Ayurveda सिर्फ bodily elements को treat नहीं करता है, but it talks about सात्विक, राजसिक, तामसिक also. इसलिए फूड को आयुर्वेदा में 3 इसमें डिवाइड किया, सात्विक, राजसिक, तामसिक में। बल्कि एलोपैथी एंड ऑल वो क्या करते हैं, वो गोलू वो देखता है जो बॉडी लेवल पे काम करता है, बट आयुर्वेदा जो है वो सिर्फ बॉडी लेवल पे नहीं, बट योर ओवरऑल जो लेट्स टॉक टेक्निकली एनर्जी पे बात करता है, जो एनर्जी को क्लीन करता है, वो लेवल पे भी वो करता है। इट इज नॉट ओनली द बॉडी, फिजिकल बॉडी, बट ऑल्सो द एनर्जी, जो आयुर्वेदा करता है। नो अदर मेडिसिन एक्चुअली डू दैट। और बाकी के मेडिसिन क्या करते हैं, सिर्फ फिजिकल बॉडी, फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, बट सटल लेवल पे आयुर्वेदा काम करता है। एंड व्हेन ऑब्वियसली व्हेन यू गेट क्लींस्ड, नॉट ओनली योर बॉडी हील्स, बट ऑल्सो you are your consciousness, because you have been following that diet, तो वो लेवल पे थोड़ा सा बेटर हो जाता है। सो सिमिलरली फॉर एस्ट्रोलॉजी, कि किस तरह से क्या लेवल पे आप किस तरह से भगवान की सेवा में लगा सकते हो। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शीला प्रभुपाद के जो गुरु थे, वो पहले he used to do everything as per astrology, but this astrology was not for कि मैं आगे धन कमाऊंगा, क्या अच्छी बीबी मिलेगी, उसके लिए नहीं था। इट वाज बेसिकली टू से कि मैं भगवान की सेवा में ये करने जा रहा हूँ, लेट्स से मंदिर बनाने जा रहा हूँ, मठ कर रहा हूँ, तो ये टाइम सही है क्या, ये सही है क्या। Initially used to do that, but then later he even stopped that. So it is good to do at a initial stage, but then when a person reaches at one particular level,
इट इज ऑल स्पॉन्टेनियस, वो जो भी करता है इट बिकम्स ऑस्पिशियस, उसे नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं पड़ती. So these are the two important branches necessary for common man. So the intelligent man, generally known as the Brahmanas, took up all the different branches of Vedic knowledge to guide society. So these are Brahmanas. Brahmanas वो है जो society को guide करते हैं Vedic knowledge के अंदर. So those are Brahmanas. It is, और जो ब्राह्मण के घर में पैदा होता है और शूद्र ऐसा करता है उसे ब्राह्मण नहीं होता, उसे ब्राह्मण बंधु कहते हैं. So there is a little difference between the Vipras and the Brahmanas. The Vipras are those who are expert in karma kand or fruitive activities, guiding the society towards fulfilling the material necessities of life, whereas the Brahmanas are expert in spiritual knowledge of the transcendence. तो यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि जो वेदों का पाठ उसे हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, तो वेदों का पाठ जो करते हैं वो ब्राह्मण नहीं होता है. प्रभुपाद यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन दे रहे हैं. जो वेदों का पाठ उसको विप्रास जो बोलते हैं वो बेसिकली कर्म कांड में रहता है. अपने वेदों में 3 कांड है हाई लेवल पे. एक है कर्म कांड, एक है ज्ञान कांड और एक है उपासना कांड. उपासना कांड मतलब जो भगवान की आराधना करते हैं. ज्ञान कांड मतलब जो ज्ञान की तरफ बात करते हैं, जो टेक्निकलिटी में जाते हैं भगवान के बारे में स्पिरिचुअल लेवल पे वगैरह. और एक है कर्म कांड. कर्म कांड मतलब जो बेसिकली कुछ यज्ञ वगैरह करके किस तरह से धन लक्ष्मी प्राप्त, जो जिसको हम लोग अभी फील ये कलयुग में हम लोग वेदों की जब बात करते हैं, जो भी घर पे अगर वेदों का कुछ भी बात होता रहेगा वो कर्मकांडी बात होता है. कोई ब्राह्मण कैसा है, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण पूर्ण है और कंप्लीटली प्योर है और प्योरली कंप्लीट है, तो उस तरीके से जो डिस्कशंस है वो यूजुअली बात नहीं होते. सॉरी, कंप्लीटली ऑब्सोल्यूट और ऑब्सोल्यूटली कंप्लीट. तो उस तरीके से डिस्कशंस अपने घर पे वेदों के कुछ नहीं होते, ये उपनिषद में, ईशो उपनिषद में. लेकिन अपने यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ पे किस तरह से हम लोग ये उपवास करके कैसे लगता है ये करेंगे, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी की जो उपासना है वो कैसे करेंगे, इनकी उपासना कैसे करेंगे ताकि ये मिल जाए. तो हमारे घर पे वेदों का कुछ भी अगर वो करप्टेड भी नॉलेज रहेगा, इट इज अराउंड कर्म कांड ओनली. दैट इज अनफॉर्चुनेटिंग. उसके बाहर लोगों को पता नहीं कि योगा में कुछ होता है. तो सिर्फ उतना ही कर्म कांड तक ही हम लोग है. और विपराध जो है इन वेदों के इन मंत्रों को रट्टा करके, इन एक प्रोसीजर को समझ के सिर्फ वही वो लोग करने का प्रयास करते हैं. नथिंग बियॉन्ड इट. दे डोंट टॉक अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन. घर पे अगर हम लोग किसी पूजा के लिए भी हम लोग बुलाएंगे, सत्यनारायण की पूजा के लिए भी हम लोग बुलाएंगे, तो वहां पे भी काफी हम लोग देखते हैं डाइल्यूट हुआ रहता है. और एंड इट विल बी ऑल, अगर सत्यनारायण की कथा होता है, इफ यू हर्ड दैट अर्लियर, कभी घर पे हुआ रहेगा आपके, तो ये कथा सिर्फ बेसिकली सत्यनारायण जी से कैसे प्राप्त किया जाता है उसके ऊपर ही कथा है. कि आप मुझे ये कर दो तो मैं आपको ये कर दूंगा. तो वो लड़का या बंदा भूल जाता है, वो लेडी भूल जाती है, बाद में उनके साथ बुरा हो जाता है, बाद में वापस सत्यनारायण पूजा करते हैं और सब सेट हो जाता है. सो बेसिकली जो भी हम लोग देख रहे हैं इट इज अराउंड कर्म कांड, इनके अराउंड. और जो डाइल्यूट है वो अलग टॉपिक. जैसा अभी हम मेरे घर पे लास्ट ईयर हुआ था सत्यनारायण पूजा. सो वो शॉक टू सी कि वो जब पूजा जब एक कथा हर चैप्टर के बाद ही यूज्ड टू से कि सत्यनारायण पूजा महाराज की, सत्यनारायण भगवान की जय, इनकी जय, उनकी जय. और उसमें अभी के जो अभी रिसेंट के कुछ संत वगैरह जो है उनका भी नाम वहां पे इंक्लूड किया जाता है, मतलब भगवानों की लिस्ट में, which is very unfortunate. जगन प्रभु बता रहे थे कि अभी जो यहाँ पे एक ये अभी रसल का मैम क्या होता है सतीश प्रभु, जहाँ पे डीटीज आए थे, मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं. आजमान. हाँ, आजमान में कुछ हुआ था ना अभी. वो कल्याणम. हाँ, कल्याणम. थैंक्स माता जी. कल्याणम जो हुआ था, जो कल्याणम के वक्त वहां पे एक रेप्यूटेड एक बंदे को बुलाया था स्टेज पे, एंड ही वाज गुड इन एस्ट्रोलॉजी. तो एस्ट्रोलॉजी का बात कर रहे थे. देन ये जो जैसे मान लो कि ये वाला जो तुल राशि है, इनको इनकी पूजा करनी चाहिए, ये जो राशि है उनको इनकी पूजा करनी चाहिए. और लास्ट में जो राशि है उन्होंने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया who is basically I don't know, I mean he may be a saint or he may not be a saint, but he was like a godman, जो हम लोग मीडिया उनको गॉडमैन बोलते हैं, उनका नाम लिया कि उनकी जब आराधना करेंगे तो हो जाएगा. सो प्रभु वाज शॉक्ड कि अरे एस्ट्रोलॉजी में तो उनका नाम लिखा नहीं है, तो व्हाई हिज नेम वाज मेंशन्ड ओवर हियर.
अभी लोग उनको जो फॉलो करेंगे देन दे विल स्टार्ट एक्चुअली वर्शिपिंग दैट गॉड मैन, which is very unfortunate. So these are the things. यहाँ पे जो होता है it is all diluted also जो होता है. So we are not even doing as per the shastras. और अगर जो भी diluted form as per shastras कर रहे हैं, that is only related to karma kand. That is the most unfortunate thing. So those are विप्रा, जो अभी के डायल्यूटेड विप्रास. लेकिन ब्राह्मणस जो टेक्निकली ब्राह्मणस, जो हम लोग जिसको अभी विप्रास को ब्राह्मणस करके रेफर करते हैं, टेक्निकली हम लोग अगर बात करेंगे ग्रेन्यूलर लेवल पे, तो those are like diluted form of विप्रा जो हमारे घर पे आते हैं. ब्राह्मणस आर द वन हु टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी. उनको शास्त्रों को पता है, लेकिन वो बाकी पुराणों उपनिषद को समझ के, maybe they may not talk about Krishna, but they will talk about self realization, they will talk about Brahman, they will inspire you to take up, look beyond just ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग. उसके बाहर भी सोचने का वो लोग प्रयास करें, आपको प्रेरित करेंगे. सो दोज आर एक्चुअली ब्राह्मणस. सो ब्राह्मणस आर एक्सपर्ट इन स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ ट्रांसेंडेंस. दिस डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज ज्ञान कांड. तो हम लोगों ने कर्म कांड देखा, अभी है ज्ञान कांड. जो ज्ञान कांड में क्या होता है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज का में बात करते हैं. ब्राह्मण कौन है, आप कौन है, वेदांत सूत्र की बात करते हैं. अतः तो अहम ब्रह्मास्मि. तो ये सब जो चीजें हैं, ये वेदांत सूत्र से वहां से हमें मिल जाता है. तो वहां पे ये हो गया ज्ञान कांड, जो ब्राह्मण की बात करें हम लोग. नाउ दिस डिपार्टमेंट इज कॉल्ड ज्ञान कांड. एंड अबव दिस देयर इज उपासना कांड, जो हम लोग अभी बात करते हैं. उपासना कांड, द culmination of upasana kand is devotional service of the Lord Vishnu, and when the brahmanas achieve perfection, they are called Vaishnavas. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Mataji. Can you once again talk about Gyan Kand? Gyan Kand is more about technical knowledge. ज्ञान मतलब knowledge, तो it is about technical knowledge about self realization. तो वहां पे काफी सारी चीजें बताए रहेंगे कि आत्मा, वेदांत सूत्र के बारे में बात किया रहेगा. काफी सूत्रास है, काफी सारे मंत्रस है. सॉरी माता जी. Like we are not a body, we are a soul. हाँ, वैसे सब वी आर सोल. बाद में देयर इज समथिंग ब्रह्मन. दे may not talk, may or may not talk about Krishna, but they will talk about at the spiritual level. They will inspire you to take spirituality, a spiritual path. So they may see that is Brahman, ये वो ब्रह्मन के क्वालिटीज, हमारे क्वालिटीज, हमें क्या कर, जब जन्म मृत्यु जरावादी, इस साइकिल से बाहर कैसे निकलना है. तो ये सब चीजें ब्राह्मण यूजुअली बात करेंगे. So they will not talk about कि ऐसा कर तुम्हें पैसा मिलेगा. That is the work of the Vipras. But ब्राह्मणस का काम क्या है, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करने का ट्राई करेगा. और यही स्पिरिचुअलिटी आगे जाके बनता है उपासना. उपासना मतलब वर्शिपिंग. दैट वर्शिपिंग, देयर आर इनडायरेक्ट वर्शिप्स आल्सो, जहां पे हम लोग काफी डिटीज का भी वर्शिप करते हैं. बट अल्टीमेटली दे ऑल कम ऑन टू वन वर्शिप, दैट इज लॉर्ड विष्णु. और जब हम लोग लॉर्ड विष्णु के बाद में वर्शिप का बात करते हैं, दैट सेम ब्राह्मणस, जब उसमें लॉर्ड विष्णु के ऊपर हम लोग फोकस ये करेंगे, they happen to come slowly to the level of Vaishnavas. So the culmination of Upasana Kand is the devotional service of Lord Vishnu, and when the Brahmanas achieve perfection, they are called as Vaishnavas. So Prabhupada says very nicely over here कि Brahmanas when they achieve perfection, ऐसे नहीं कि मैंने से विष्णु उपासना कांड को प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो नहीं. Good, you are now as a sadhaka, but when you attain perfection of worshipping Vishnu, then you are called as Vaishnava. तो वैष्णव यहाँ पे this tells us that Vaishnava are basically over Brahmanas. Usually डिस्कशन होता है कि ब्राह्मणस और वैष्णव में, ब्राह्मणस के चतुर्विश में ब्राह्मणस है, वर्णाश्रम में वर्णस में ब्राह्मण है, लेकिन वैष्णवस के कहाँ पे भी मेंशन किया नहीं गया. तो आचार्य अपने कहते हैं कि इट इज बिकॉज वैष्णवास आर बियॉन्ड इज वर्णाश्रमा. वर्णाश्रमा इज मोर और लेस स्टिल कनेक्टेड टू मटेरियल. मतलब ब्राह्मणस भले हम लोग स्पिरिचुअल, बट दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट एट ब्रह्म ज्योति, और वो मतलब दे आर एट द बॉर्डर, उस तरीके से है. सो दे आर स्टिल नॉट एट ए हायर लेवल ऑफ मोक्ष. सो वो इस पे ही बात कर रहे हैं. बट देन बियॉन्ड दैट इट इज नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट विष्णु. बट अगर आप उसमें आपके क्वालिटीज, वैष्णव के क्वालिटीज हम देख रहे हैं, 64 क्वालिटीज है वैष्णव के. तो वो क्वालिटीज के बारे में हम लोग, वो क्वालिटीज हमारे अंदर आना स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं, दैट इज कॉल्ड परफेक्शन. वो लेवल पे पहुंचने के बाद ह्यूमिलिटी, एंगर पे कंट्रोल होता है, सेंसेस पे कंट्रोल होता है. वो लेवल पे पहुंचने के बाद देन वी आर कॉल्ड वैष्णवा इन ट्रू सेंस.
सो विष्णु वर्शिप इज द हाईएस्ट ऑफ द मोड ऑफ वर्शिप। उपासना कांड में सबसे उत्तम जो है वो है विष्णु की उपासना। एलिवेटेड ब्राह्मणास आर वैष्णवास एंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। सो एलिवेटेड ब्राह्मणास आर कॉल्ड वैष्णवास। रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने उनके भी ऐसे पास जहां पे रामानुजाचार्य को वो शिवजी के मंदिर में जाते नहीं थे, तो उनका ऐसा मानना था कि तो आप क्यों नहीं जाते करके, तो वो बोलते थे कि मैं विष्णु की पत्नी हूँ, मतलब मैं विष्णु की पत्नी जैसी हूँ, तो विष्णु परम पुरुषोत्तम है, तो हम लोग सब उसके पत्नियां जैसी है, तो मैं विष्णु की पत्नी हूँ। एक पत्नी जो चेस्ट वाइफ रहती है वो किसी दूसरे मर्द के घर पे जाती नहीं है, तो मैं क्यों दूसरों के मंदिर में जाऊं, मेरे जो पति जहां पे मैं वहीं पे रहूंगी, मैं वहीं पे रहूंगी। सो दिस वाज द आइडियोलॉजी दिस आचार्य सेड। इट इज नॉट, दे डिड नॉट डिफेम लॉर्ड शिव और समवन, दे सेड कि मैं शिव जी, मैं विष्णु जी की पत्नी हूँ, मैं विष्णु जी यहाँ पे उनके घर पे रहूंगी, मैं दूसरों के घर पे क्यों जाऊं करके, इट डजंट लुक गुड ऑन मी। सो दिस वाज दिस आचार्य। अभी हम लोग यूजुअली फैनेटिक जैसा बात करते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि नहीं इधर नहीं जाना, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। रामानुजाचार्य वो गलत शलत की बात नहीं करते थे, वो उनका जो मूड है वो मूड की हिसाब से बात करते हैं। एंड दिस मूड वाज, आई मीन दैट इज द लेवल ऑफ डिवोटीज। तो ऐसा नहीं कि वो कभी डिसरेस्पेक्ट करते थे, उन्होंने कभी डिसरेस्पेक्ट किया नहीं शिव जी को, बट it was his mood when he was worshipping Lord Shiva, Lord Vishnu. तो बाकी जो वर्शिप है वो लोग ठीक है दूर से पैर पड़ते हैं, बट दे डोंट वांट टू एंगेज इन द वर्शिप बिकॉज दे नो दैट इट इज अल्टीमेटली दे हैव टू अगेन, मतलब 100 फ्लोर तक पहुंचे, वापस 90th फ्लोर पे जाके वापस ऊपर आने की जरूरत नहीं है, पहुंच के तो वापस नीचे आके ऊपर आने की वो तमाशा करने की जरूरत क्या है। सो इट डजंट एक्चुअली बेफिटेड इंटेलिजेंट मैन। It does not mean that we should disrespect them. I mean, at our level, we can go, we can pay our homage, but we should not engage in worshipping them for our material sense gratification. अपने सेंसेस के लिए, अपने हमें कुछ चाहिए मटेरियली, उसके लिए उनके साथ एंगेज करना नहीं चाहिए। कृष्णा प्राप्ति के लिए करना है, ओ परफेक्टली फाइन। गोपीज हैव डन इट, नंद महाराज हैज डन इट, यशोदा मैया हैज डन इट, Vasudeva has done, everyone has done it. It is not that they have not done it, but they have, their only objective was protect Krishna. अभी हम लोग तो protect Krishna कर नहीं सकते, हम लोग वो लेवल पे नहीं है, but give us Krishna, जैसे गोपी करते थे, हमें कृष्णा कात्यायनी से उन्होंने प्रे किया था कात्यायनी देवी से कि हमें कृष्णा चाहिए एज ए पति, हमें कृष्णा एज ए पति हमें दे दो। तो वो वर्शिप करते थे कात्यायनी देवी की या शिव जी की, रुक्मिणी देवी करती, वो दुर्गा देवी के मंदिर में गई थी उनके अगवा होने से पहले। तो ये सब जो है, तो ये सिर्फ कृष्णा के लिए वर्शिप करते हैं। तो वो लेवल पे हम लोग अगर हम लोग करते हैं, देन वी शुड आस्क फॉर कृष्णा भक्ति, वी शुड आस्क लॉर्ड शिवा फॉर कृष्णा भक्ति, वी शुड आस्क गणेशा, वी शुड आस्क दुर्गा देवी, वी शुड आस्क एवरीवन फॉर कृष्णा भक्ति। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे कि हमें कुछ पैसा चाहिए, या फिर अच्छी बीबी पति चाहिए, या फिर हेल्थ मेरा अच्छा हो जाए, तो ये सब हम लोग करेंगे, देन we will end up in this cycle of life and death, we will end up in this material world. ये लेवल पे इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग आर्टिफिशियली वो ये सब चीजें, हमारी जो डिमांड है वो डिस्कार्ड करें, क्योंकि हमारे घर पे कोई बीमार होता है या फिर फाइनेंशियली चैलेंजेस होता है, हमें चाहिए रहता है, वी कैन नॉट आर्टिफिशियली जस्ट पुट इट असाइड एंड बाद में हम लोग एक्ट करेंगे कुछ नहीं है, सब कृष्णा देख लेगा, हम लोग आर्टिफिशियली करने का ट्राई करेंगे, देन वी विल गो इनटू डिप्रेशन एट वन पॉइंट। तो वो केस में it is recommended कि अगर ऐसा we are still not at that level, we are still at a very initial sadhaka level, then we should then go to Krishna. अगर पत्नी को कुछ चाहिए तो उसको किसके पास जाना चाहिए, अपने पति के पास, ना कि दूसरे किसी गैरमर्द के पास। So as per Ramanujarya's mood, so similarly we also have to go to Krishna, और कृष्णा के जाके we should ask for something if ever we want to ask. So Krishna is not like the देवी देवता. So कृष्णा क्या करते हैं, बाकी देवी देवता जो है, आपने आराधना किया, ये किया, वो फॉलो किया, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, अगर आप सही तरीके से अपने शास्त्रों की हिसाब से किया आपको मिल जाएगा। कृष्णा का ऐसा नहीं है, आप कृष्णा की आराधना को बोलोगे मुझे पैसा चाहिए, कृष्णा तुम्हें आपको पैसा देगा वो जरूरी नहीं है,
कृष्णा जरूर ना आपको पैसा देगा, he may not give that to you, because he sees, जैसे एक्चुअल में जो माँ बाप रहते हैं, ये चॉकलेट खाने से मेरे बेटे का दांत खराब हो जाएगा और उसको डेंटिस्ट को लेके जाना पड़ेगा, दांत उखाड़ दिया जाएगा, तो वो एक पेरेंट सोचता है कि हाँ नहीं, इसलिए मैं उसको चॉकलेट दूंगा, भले बच्चा रोता रहेगा। लेकिन जब हमारे रिश्तेदार आते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है यार, मुझे देना है तो मैं दे दूंगा, वो बच्चा रो रहा है मैं दे दूंगा, अभी मैं थोड़ी इतना उस बच्चे को समझाते रहूं, उसको डांटते रहूं, मेरा वो काम नहीं है, उसने मांगा है, इतना रो रहा है, ठीक है उसको दे दूंगा चॉकलेट। तो देवी देवता है उस तरह से, अगर हम लोग ज्यादा आराधना करेंगे, ठीक है उसको चाहिए ले ले, उससे वो जीवन मृत्यु के साइकिल में फंसेगा नहीं फंसेगा, उनका लुकआउट, एक्चुअली उनका लुकआउट नहीं है, उनका ओनरशिप है नहीं। लेकिन कृष्णा ऐसा नहीं है, भगवान क्या करते हैं, अच्छा ये देने से, ये जीवन मृत्यु के इसमें ये सब पैसा अगर मिलेगा, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये बंदा उसका वो पैसा वो गलत चीजों में भी डाल सकता है, अपने एंजॉयमेंट का डालेगा, और ज्यादा डालेगा वो फंस जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, उसको उसने 1 लाख मांगा है, मैं उसको 50 दूंगा जितना उसका रिक्वायरमेंट है, बाकी जैसा चलने वैसे चलने दे, या फिर उसको दूंगा ही नहीं, मैं इनडायरेक्टली उन चीजों को संभाल लूंगा, या फिर ये सिचुएशन के बाद वो जो इवॉल्व होगा 2.0 करके, वो एक और भी बेटर स्पिरिचुअल बंदा करके बाहर आएगा। तो इस तरीके से भगवान पूरा कैलकुलेट करते हैं कि इसको कितना देना है, उसको कितना देना, अपने स्पिरिचुअल एस्पिरेशन के लेके, बिकॉज कृष्णा डजंट वांट अस टू एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कृष्णा वांट्स अस टू कम बैक टू हिम, बैक टू गॉड एट, टू अवर होम, ओरिजिनल होम। कृष्णा हमारे साथ प्यार का आदान प्रदान करना चाहिए, उधर खेलना चाहते हैं हमारे साथ गोलोक वृंदावन में। तो ही इज वेटिंग कि यार मैं इसके साथ कभी खेलूं कर, इसके साथ आदान प्रदान प्यार का कैसे करूं, सो इज वेटिंग। तो वो क्या करते हैं, तो जितना जिस चीज से हमारी भक्ति और बढ़े, जो उस तरीके से वो चीज को हमें देते या नहीं देते, सो दैट इज कृष्णा। लेकिन बाकी देवी देवता क्या करते हैं, मांगा दे दिया, चैप्टर क्लोज, मेरा और तेरा अभी कुछ लेना देना नहीं है, तू अभी क्या करना है कर, दैट इज यू हैड आस्क्ड फॉर इट, आई हैव गिवन फॉर इट, दैट्स ऑल। So this is why worshiping demigods is usually forbidden. It is not I'm sorry, forbidden is wrong word, my mistake. It is not recommended, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग थोड़ा भी ऐसे कृष्णा को मांगने के लिए भी जाएंगे, तो क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग अपने लिए मांगना स्टार्ट कर देते हैं एक लेवल के बाद। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन कलियुगा, तामसिक पूरा एकदम स्ट्रांग है, एंड वी विल अल्टीमेटली एंड अप इन डूइंग दैट अनलेस वी आर इन गुड एसोसिएशन ऑल द टाइम. So Vaishnavas are elevated Brahmanas who are always engaged in the transcendent loving service of the Supreme Lord only. So then Prabhupada talks in 30th verse that जहाँ पे बोला गया है कि his son would become famous in the world and he became examiner because उन्होंने पेट कोक में देखा था, राइट, भगवान को देखा था, तो ये व्यक्ति कौन है, तो उस व्यक्ति के लिए ढूंढने के लिए वो पागल रहेंगे. So this is भक्ति. दिस इज वन लेवल ऑफ भक्ति, वन काइंड ऑफ भक्ति, जहां पे हम लोग भगवान को मिलने के लिए तड़प रहे, उन्हें पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन भगवान है. He doesn't know that is he wants to see that person. He's mad for seeing that person. So that is why he called examiner, परीक्षित, वो एग्जामिन कर रहा है पर्सनैलिटी को, देखने के लिए कौन है करके. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि श्रीला जीवा गोस्वामी remarks in his connection that every child, if given an impression of the Lord from his very childhood, certainly becomes a great devotee of the Lord, like Parikshit Maharaj. हमारे बच्चों को अगर सही इंसान बनाना है और सही उन्हें जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर निकालना है, उनको एज कृष्णा एज ए एक्चुअल रियल पेरेंट जैसे करते वैसे हमें भी करना है एज ए रियल पेरेंट. देन वी शुड engage them into this path of bhakti right from the childhood. We have to give the improve. We cannot push them, that is for sure. उनको पुश नहीं कर सकते, बच्चे हैं, उन्हें हम लोग पुश नहीं कर सकते, किसी पे जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे. लेकिन यहाँ पे प्रभुदा क्या बोल रहे हैं कि इंप्रेशन ऑफ द लॉर्ड, इंप्रेशन लॉर्ड मतलब वी हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस. हमें उन्हें कथा कहना चाहिए, स्टोरीज कहना चाहिए, उनको इंटरेस्टिंग कहना चाहिए. अगर वो चैंटिंग नहीं कर रहे तो उन्हें स्टोरीज के थ्रू उन्हें करंट रखना चाहिए. अगर चैंटिंग करे तो उनको चैंटिंग के लिए उनको इंस्पायर करना चाहिए. तो उस तरीके से उनको एंगेज, उन पे इंप्रेशन रहना चाहिए और उनको धीरे धीरे एंगेज करना चाहिए. सो व्हेन वी डू दैट एट दिस स्टेज, then they will become great devotees like Maharaj Parikshit. One may not be able to be fortunate as Parikshit Maharaj to have opportunity to see the Lord in the womb of his mother, but even if he is not fortunate, he can be made so if the parents of the child desire him to be so. So this is a very strong statement. Prabhupada ने बोला नहीं कि if the child desires, because child desire करेगा ही नहीं वो,
इफ द पेरेंट डिजायर, पेरेंट डिजायर करेंगे मतलब क्या करेंगे, वो उन्हें खुद करना पड़ेगा। वो अगर बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे और खुद नहीं कर रहे, this will not be possible. There may be some rare cases, but otherwise as a thumb this does not work. There is a practical example in my personal life in this connection. प्रभुपादा खुद का एग्जांपल देते हैं, वो कैसे आए भक्ति में, प्रभुपादा कैसे आए भक्ति में। My father was a pure devotee of the Lord, and when I was only 4 or 5 year old, my father gave me a couple of forms of Radha and Krishna. राधा कृष्ण छोटे छोटे डिटीज फॉर्म्स, डिटी टाइप फॉर्म उन्हें दिया था, डॉल टाइप उनको दे दिया था प्रभुपादा को. So in a playful manner, I used to worship these deities along with my sister, and I used to imitate the performance of neighboring temple of Radha Govind. He was playing with it. He ऐसे नहीं कि वो चार मतलब जो विद्या फॉलो होते हैं सेम विधि फॉलो के, वैसे उनके पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं दिए, उन्होंने देखा किया, उनके पिताजी कर रहे, बाजू में राधा गोविंद टेम्पल में क्या किया है, तो वो भी घर पे बच्चे वही करते रहे, बच्चे इमिटेट करते, तो वो भी इमिटेट करना स्टार्ट किया, छोटे डॉल्स के साथ उन्होंने खेलना स्टार्ट किया, ये करना स्टार्ट किया, और उसके लिए बिकॉज ऑफ दैट ही डेवलप्ड ए नेचुरल एफिनिटी फॉर द लॉर्ड. प्रभुपादा स्टार्टेड डेवलपिंग इट, उन्हें कनेक्शन, वो जान रहे थे कि उनका कुछ कनेक्शन हो रहा है भगवान के साथ करके. माय फादर यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑल द सेरेमनीज बेफिटिंग माय पोजीशन. I am pleased that my generous father gave me the first impression which was developed later into regulative devotional service. तो उन्होंने ये बोला नहीं कि मेरे पिताजी ने मुझे डिवोशनल सर्विस ये वो किया, उनके पिताजी ने उनको एक्चुअली काफी कुछ किया, मृदंगा सिखाया, ये किया, बिकॉज उनको लगता था मृदंगा से भक्ति के लिए, एंड इट इज एज यू मेंशन इन शास्त्रास, मृदंगा आल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग डिवोशनल सर्विस एंड ऑल. बट वो सब डेवलप किया, काफी सारे उनको अपॉर्चुनिटी दिए, उनको मोटिवेट किया ऑल द टाइम, उन्होंने काफी कुछ किया. बट प्रभुपादा ही इज सेइंग ही हैज गिवन द फर्स्ट इंप्रेशन. तो इंप्रेशन ही इज बेसिकली ट्राइंग टू एनकरेज अस कि एटलीस्ट हम अपने बच्चों को वो इंप्रेशन दे कि हम लोग, और इंप्रेशन कैसे होगा, हम लोग खुद जब करेंगे एंड उनको वो अपॉर्चुनिटी देंगे. सिर्फ हम लोग करके और उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं तो होगा नहीं. जैसे उनको छोटी छोटी डिटीज वाले डॉल लाके दे दिए और उनको बोला देखो मैं सुबह ये करता हूँ, तूने तेरा डॉल का पूजा पाठ किया क्या, उस तरीके से उनको मोटिवेट करना है. देखिए मैंने आज मेरे डॉल मैंने डीटीज को सजाया, तेरा ऑल्टर किधर है, छोटा ऑल्टर किधर है, उसमें तूने तेरे डीटीज को सजाया क्या. सो देन दे फील ओ ये कुछ टाइप का गेम है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है गेम्स वगैरह, वो ऐसा कुछ है क्या, तो मैं भी खेलूंगा, मैंने भी सजा दिया, तो दे थिंक दिस इज अ गेम एंड दे गेट कनेक्टेड टू कृष्णा एंड देन वी स्पीक अबाउट कृष्णास पास टाइम टू देम. तो उस तरीके से वी हैव टू मेक एन इंप्रेशन ऑन द किड्स, और उस तरीके से करके then this see it you still cannot guarantee that the person will take up devotional service immediately, but I have seen examples, जैसे मुंबई में हुआ था, and these devotees they were practicing very nicely, और उनका जो बेटा था उनके साथ वैसे बचपन में इंप्रेशन क्रिएट किया, बच्चा अच्छे से वो करता था, but then when he reached college तो थोड़ा सा उथल पुथल हो गया. Then he was like he stopped chanting, even chanting. His position became, very bad, a spiritual position. So he started even chanting. But his parents were calm. They did not force him. They were not angry with him. They understood. हाँ ठीक है. They continued giving him opportunity. वो उन्होंने अपना भक्ति कंटिन्यू किया. That impression was continuously being created on this child. और एक बार माइकल जैक्सन आए थे मुंबई में. He had come to Mumbai to make a show. काफी I think वहाँ पे काफी वो पॉपुलर न्यूज में और काफी था. I remember still कि एक लड़की था जिसके चीन पे उनके जिसके चीक पे माइकल जैक्सन ने किस किया था, एंड दैट गर्ल दैट शी डिड नॉट टेक बाथ फॉर 7 days कि को निकल जाएगा करके. ऐसे काफी सारे नॉनसेंस थिंग्स हुए थे. बट ये माइकल जैक्सन जब हुआ था, वो एक कंसर्ट में गया था माइकल अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब वो कंसर्ट में गया था माइकल जैक्सन म्यूजिक सुन के, उसे जो बचपन में जो इंप्रेशन क्रिएट किया था मृदंगा और सब कीर्तन, वो उसको याद आने लगा, और इतना स्ट्रांगली याद आया उसको कि वॉकड अवे फ्रॉम दिस, ही स्टार्टेड मिसिंग इट वेरी बैडली. जो कीर्तन वगैरह उसको मिस करना उसने बहुत गंदे तरीके से स्टार्ट किया, एंड सो मच दैट ही लेफ्ट माइकल जैक्सन का कंसर्ट हाफ वे, जिसके लिए वो वेट कर रहे थे टाइम से, वो आधा छोड़ के घर पे चला गया, एंड देन ही स्टार्टेड सर्विंग टेंपल एंड दिस एंड दैट, अगेन पूरा फॉर्म में आ गया. सो दीज इंप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सी कभी किसका क्या, वी कैन नॉट कंट्रोल एनीवन कि तुझे ये डिवोटी बनेगा, ये डिस्को डिवोटी बनाऊंगा मैं. दिस इज ऑल नॉनसेंस. I cannot ensure that my child will become a devotee. What I have to do is best is to create impressions from my actions, start giving us some opportunities and all.
बट इफ आई से दैट मैंने मेरे बेटे को मैं डिवोटी बना के छोड़ू, मैंने डिवोटी बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को सही रहा ये करूंगा, that is not what we are doing. That is Krishna's arrangement. It is going on. That is, you can just create impressions, nothing beyond that, and keep giving opportunities. तो इस तरीके से हमें अपने बच्चों को भी इसमें लाना है. If we actually truly care about our child, कि बच्चे को हम लोग सिर्फ उसके सेंस एंजॉय करने के लिए हम लोग ये करते रहेंगे, अपना पूरा ध्यान देते रहेंगे, हम लोग, बच्चा गलत लाइन पे जाएगा वो अलग स्टोरी, अगर गया तो गलत लाइन पे भी जा सकता है, या फिर गलत लाइन पे भी नहीं गया, एक अच्छा इंसान बना, फिर भी वो जीवन मृत्यु से बाहर नहीं गया, सो ही विल स्टिल कम बैक अगेन and he will suffer as an animal or as a human, whatever body he may acquire, he may still suffer. So we are actually not doing real good for that person. It is not to say that हम लोग बच्चों को टॉयज देना बंद करें, ये करना बंद करें, but while doing that we have to also ensure that we create the right impression in their mind. This is the right time. जैसे जैसे बोलते हैं ना, बच्चे दे आर लाइक क्लेज, उनका जो माइंड अभी रहता है क्ले जैसे रहते हैं, अभी हम लोग जैसे शेप करेंगे वैसे वैसे वो बड़े होंगे. दैट इज व्हाई पेरेंटिंग इज वेरी टफ. पेरेंटिंग इज नॉट सो इजी इट लुक्स लाइक. जो जैसे हम लोग तो हमारा तो हम लोग इतना कुछ करने बिकॉज स्पिरिचुअलिटी ज्यादा नहीं है, बट अर्लियर टाइम में दे नॉट ओनली हैड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट वी आर हैविंग, दैट उनको अच्छा एजुकेशन देके उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाए. पहले वैसा नहीं था कि सिर्फ उनको अच्छा मटेरियल एजुकेशन, बट ऑल्सो स्पिरिचुअल एजुकेशन, उनको सही तरीके से एंगेज करे वेदास के नॉलेज में. सो इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट बिकॉज इट इज नॉट वेरी इजी. So we have to be like Prabhupada's father, very generous person, and then we have to give them that impression. We have to be very generous in giving that impression to impression on our child's mind, and that is where Prabhupada says that we are acting as a real parent. So then Prabhupada says, later says in verse 34. So this is regarding जहाँ पे the king could not procure the ingredients for the 3-horse sacrifice, अश्वमेघ यज्ञ किया था. Thus the pious king Yudhishthir Maharaj, who was very fearful after the battle of Kurukshetra, pleased Lord Hari, the personality of Godhead. तो उन्होंने क्या किया, महाराज युधिष्ठिर had to collect the necessary heap of gold left by Maharaj Marutu and the Brahmanas who were given gold in charity. तो मरुतु कौन थे? He was one of the emperors of the world, so he ruled over the world even long before Yudhishthir Maharaj, and he was also a devotee of the Lord, and he was a good ruler. काफी कुछ करते थे, and कहा जाता था कि जब उनके जो भाई थे बृहस्पति, जो हमें पता है जो इंद्र के जो प्रीस्ट है, पर्सनल प्रीस्ट, जो बृहस्पति कुछ टाइम के लिए गायब थे, तभी उनके जो भाई ने वो पोजीशन ले लिया था. सो वी अंडरस्टैंड हिज ब्रदर वाज आल्सो एक, I mean, he was like a Brahmana. He knew all the Vedic mantras, की देवताओं ने उन्हें अपॉइंट किया था टेम्पररी के. तो जब ऐसे उनपे जब the Lord was actually so satisfied by his जो रूल किया था and all that he was given the charge of basically a mountain of gold. तो माउंटेन जो गोल्ड था, कहा जाता है उसका पीक जो था वो गोल्ड का था, एंड इट वाज सेड टू बी समवेयर नियर हिमालयस एंड ऑल. तो वो वहां पे उनके पास मतलब इतनी धन दौलत थी, एंड उन्होंने ऐसा नहीं कि उसके एंजॉयमेंट के लिए वो यूज किया. ही यूज्ड टू एक्चुअली यूज दैट गोल्ड. इट वाज लाइक नेवर एंडिंग टाइप. ही यूज्ड दैट गोल्ड टू एक्चुअली गिव अस व्हाट यू से, जब अपने घर पे जब ब्राह्मण और हम लोग प्रजा को इनवाइट करते हैं तो हम लोग को दे देते, तो उस तरीके से उनको दे देते थे. they used to give that. So here यहाँ पे प्रभुपादा बोलते हैं कि ये युधिष्ठिर महाराज जो है, उनको ये महाराज मरुत ने जो गोल्ड छोड़ दिया था, तो वो गोल्ड उनको कलेक्ट करने के लिए इन्होंने कहा था क्या, कृष्ण भगवान ने उनको, अर्जुन को उस तरह गाइड किया था. The Brahmanas who were given the gold in charity by King Marut, मतलब जो महाराज मरुत ने छोड़ दिया था और जो ब्राह्मणस को दान दिया था, उन्होंने भी जो गोल्ड छोड़ दिया था वो लेके आने के लिए कह दिया. So the learned Brahmanas could not take away all the loads of gold given by Maharaj Marut, and therefore they left behind the major portion of the gift.
Maharaj Marut also did not again collect such heap of gold given away in charity. तो गोल्ड दे दिया था, ब्राह्मण अपने इतना सब क्या करेंगे, इसलिए ब्राह्मण ने थोड़ा जितना चाहे उतना ले लिया, बाकी सब डम कर दिया था कहीं तो, और काफी सारे ब्राह्मण वहां पे डम करते थे. Besides that, all the golden plates and utensils which were used in sacrifices were also thrown in the dustbin. जो ये sacrifices में जो अलग अलग जो गोल्ड प्लेटेड ना सॉरी गोल्ड के ही रहते हैं सब यूटेंसिल्स, वो भी उसको डिस्पोज किया था, वापस नए सैक्रिफाइस में यूज नहीं कर सकते. इट हैज टू बी मेड ऑफ फ्रेश गोल्ड. तो वो डिस्पोज किया जाता था, वो भी वहां पड़ा पाता है. वो वैसे डिस्पोज किया गया गोल्ड बहुत बड़ा, जैसे अभी जैसे हम लोग वेस्ट का हीप देखते हैं बड़ा बड़ा, किसी कोने में डंपिंग में देखते हैं ना, बड़ा हीप रहता है, मतलब एक मनुष्य जो इंसान भी वहां पे जाएगा, इफ यू लुक एट अ वेरी हाई फ्रॉम ए वेरी हाई लेवल, जहाँ पे पूरा डंपिंग का अगर हम लोग एरिया कवर करेंगे, हम लोग दिखेंगे ना वहां पे, इतना डंपिंग कचरा डंप होता है. सो उतना उतना गोल्ड डंप हो गया था कि नहीं चाहिए, यही चाहिए, चैरिटी में मिला, चैरिटी का बचा हुआ, चैरिटी में मिला, नहीं चाहिए, उसको फेंक दिया, ऐसा करके बहुत डंप ये हुआ था, डस्टबिन में फेंका हुआ. And such heap of gold remained unclaimed property for a long time till Maharaj Yudhishthir collected them for his own purpose. Lord Shri Krishna advised the brothers of Maharaj Yudhishthir to collect the unclaimed property. यहाँ पे अर्जुन को बताया गया था कि वो लेके आओ, और इसलिए अर्जुन को एक नाम पड़ा था. किसी को पता है क्या नाम है वो? धनुर्धारी. धनुर्धारी मतलब वो धनुष ये करने वाला. हाँ नहीं, और एक है उसका कुछ है, because of that he used to collect. I forgot that name. Any other thoughts? धनंजय. धनंजय, yes. धनंजय. He used to bring up all- तो वो धनंजय इसलिए कहलाते बिकॉज उन्होंने वो गोल्ड महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने वो धन वहां से लेके आए थे. सो लॉर्ड श्री कृष्णा टू कलेक्ट द अनक्लेम बिकॉज इट बिलोंग टू द किंग. बिकॉज वो वहां पे राजा जो रहता है उसका यूजुअली रहता है, जब हम लोग गवर्नमेंट कुछ हम लोग को गोल्ड वगैरह मिलता है, इट गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजर, राइट. तो वैसे जहाँ पे गोल्ड है वो राजा का है, तो इसलिए राजा को द युधिष्ठिर हैड एवरी राइट ऑन इट. The more astonishing thing is that no subject of the state also collected such unclaimed gold for industrial enterprise or anything like that. This is really interesting, right? वहां पे पड़ा था इतने सालों तक, कोई सिटीजन प्रजा भी जाके उन्होंने खरीदा नहीं. मतलब वहां पे जो प्यूरिटी था, लोगों का कॉन्शियस जो प्योर था, जो हम लोग मतलब अभी सोच भी नहीं सकते थे. अभी ऐसा कहाँ पे मिलेगा भी नहीं कि ऐसा गोल्ड का पाइल पड़ा और कोई उसको सोचेगा भी नहीं करके. सोचना तो झूठ, पब्लिक तो ऐसे ही निकाल के लेके जाएंगे, बचेगा ही नहीं वो. इधर एक 10 रुपए पड़ता है वो लोग छोड़ते नीचे पड़ा हुआ. सो दिस इज रियली एस्टोनिशिंग कि उन्होंने किसी ने यूज नहीं किया. दिस मींस दैट द स्टेट सिटीजन्स वर कंप्लीटली सेटिस्फाइड बाय ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. युधिष्ठिर महाराज के वक्त इतना, आई मीन दे वर ऑल सेटिस्फाइड. तब होता है इंसान जब दे आर स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड. मटेरियल सेटिस्फाइड कभी कोई होता नहीं है. सो देवर उनका कॉन्शियस, हम लोग उनका कॉन्शियसनेस काफी हाई लेवल पे था. And therefore not inclined to accept unnecessary, the word here is unnecessary productive enterprise for sense gratification. Maharaj Yudhishthir also requesting the heaps of gold for performing sacrifice and for pleasing the Supreme Lord Hari, the personality of Godhead. Otherwise he had no desire to collect them for the state treasury. उन्होंने भगवान के लिए ही और सैक्रिफाइस के लिए ही उन्होंने ये किया था, यूज किया था. Otherwise he had no desire to collect them from state. The horse sacrifice, ये यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ वाले कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है. The horse sacrifice or the cow sacrifice yajna performed by the Vedic regulation shouldn't be misunderstood as the process of killing animals. On the contrary, animals offered for the yajna were rejuvenated to a new span of life by the transcendental power of chanting the Vedic hymns, which if properly chanted are different from what is understood by the common layman. The Vedic mantras, the Veda mantras, all practical and proof of the rejuvenation of the sacrifice animal. मतलब जो एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था उस वक्त, काउ सेक्रीफाइस या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस हुआ करता था, दैट सेक्रीफाइस इज नॉट एक्चुअली किलिंग ऑफ एनिमल्स. जहां पे अभी एनिमल्स को मारते, इट वाज नॉट एक्चुअली किलिंग ऑफ एनिमल्स. यहाँ पे उनके शरीर को जो एनिमल शरीर है उसको जब उसको त्याग देते थे, मार डालते थे, तब वो जो
अंदर का जीवात्मा है, उस जीवात्मा को इमीडिएटली ह्यूमन फॉर्म मिलता था, इमीडिएटली स्पॉन्टेनियस, वो यज्ञ से ह्यूमन फॉर्म मिलता था। इतना पावरफुल वैदिक मंत्र हुआ करते थे, उनको इमीडिएटली ह्यूमन फॉर्म मिल जाता था। एंड ह्यूमन फॉर्म इज द राइट, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू एनीवन। अगर हर एक जानवर को, आई मीन जस्ट लिविंग असाइड द एनिमल, जो पिरामिड वगैरह वो साइड में छोड़ के, अगर हम, आई मीन जस्ट टू स्पीक ऑन द कॉन्शियस स्पिरिचुअल लेवल, अगर हर एक एनिमल को अगर मार के उन्हें अगर ह्यूमन शरीर मिलता रहेगा, then that is not you're doing bad to anyone, you're doing the best thing that you could do to an animal, right? Because now you are giving them an opportunity to get off this cycle of life and death. तो यही अश्वमेध यज्ञ में भी यही होता था, जब हॉर्स और काऊ का अगर सैक्रिफाइस होता था, then it was not to enjoy the meat, it was basically to the Vedic mantra was chanted so perfectly that जो जीवात्मा है उसको ह्यूमन शरीर इमीडिएटली मिल जाता था, and then that person can use it in the in getting in self realization. बट अभी अनफॉर्चुनेटली वैसा होता नहीं। अभी जो सेक्रीफाइस होता है दैट इज जस्ट एनिमल किलिंग, नथिंग एल्स। उधर किसी डीटीज के सामने काट डालते हैं, आई हैव सीन दैट, आई मीन उसको भांड वगैरह बोलते हैं कुछ एरियाज में। सो दे आर लाइक हजारों में लोग आते हैं मुर्गे को लेके, दे सेक्रीफाइस, इवन कोई बकरे को लेके आता है, they kill the animal, sacrifice is wrong, but they kill the animal under the name of sacrifice। घर पे जाके उसका मटन चिकन बना के खाते हैं, नथिंग, मतलब कुछ है ही नहीं, उसका पर्पस क्या पता नहीं, जस्ट टू प्लीज द डिटी सो दैट वी विल गेट समथिंग टू एंजॉय आवर सेंसेस, वही उनका उद्देश्य है, नथिंग बियॉन्ड इट। So this is called killing and it is sinful. But what we are talking, Prabhupada mentioned, what the yajna that we are doing is basically like the horse ran across the world, yajna sacrifice में, and then now the king has to give him something better, right? That will benefit the horse. The only thing that we can do is give him a human body. तो horse को घास देके कुछ नहीं होने वाला, that is like, I mean that is not actually useful to the horse. That is why these sacrifices, yajnas that we read in the Shastras is very, very different from the animal sacrifice that we see, animal killing that we see in Kali Yuga. और ये इसके वजह से, कलियुग में बढ़ने की वजह से, that is why Buddhism was introduced by Lord Buddha, wherein basically they were following Shastras, but they were kind of superficially rejecting Shastras. तो बुद्धा ने बोला शास्त्रों की वजह इतना सारा प्रॉब्लम है, शास्त्रों को साइड में रखते हैं, हम लोग ये फॉलो करेंगे। सो दे वर फॉलोइंग व्हाट इज मेंशन्ड शास्त्रास, नॉट एनीथिंग बियॉन्ड शास्त्रास, बट दे सेड कि थोड़ा टाइम के लिए शास्त्रों को ब्रेक देते हैं, क्योंकि काफी उसका ये हो रहा है, हम लोग काफी उसको डाइल्यूट करके कंटेमिनेट किए हुए। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी of such a methodical chanting of the Vedic hymns by so-called Brahmanas or priests of the present age. The untrained descendants of the twice born are no more like their forefathers, and thus they are counted among the Shudras or once born men. तो अभी जो घर पे एक्चुअली आते हैं, some of them may be Vipras, but because this is Kali Yuga, because of influence, many of them turn out to be, unfortunately, they are the Shudras. So वो सिर्फ मंत्रों को कुछ उच्चार करते हैं और कुछ तो करके कुछ तो छोड़ देते हैं, and then we get fooled and because we are scared, afraid, we call them, we try to do it, or we are greedy, we call them, we do some puja and all. But that is what the situation plight right now. So we don't even have actual Brahmanas or even Vipras. That is what Prabhupada is saying. Everyone is born Shudra in this age of Kali. The once born man is unfit to chant the Vedic hymns, and therefore there is no practical utility of chanting the original hymns. And that is why पहले केस में शूद्रों को, it is only Brahmanas who are allowed to touch or to chant the Vedic hymns or understand Vedic hymns, not the other classes. Shudras को, Vaishyas को वगैरह, they had their own course of action. They were asked to focus that. But Vedas, they were privileged, or they could only be understood by person who were clean by heart, who were practicing, let's say the minimal eligibility things that were required by the Shastras, मतलब cleanliness और वो सब चीजें वो लोग strictly follow करते थे,
और उसके वजह से दे वर एलिजिबल टू एंड दे हैड दैट कम्युनिटी जहाँ पे और दैट अपॉर्चुनिटी वेयर दे कुड लर्न फ्रॉम देयर गुरु. On the other hand, Shudras were not so keen in going understanding Vedic knowledge, but because they wanted something materially, they sometimes attempted to read Vedas, and that is why they are forbidden. अगर हम लोग कुछ अगर ऐसा पढ़ सुनते भी है कहीं पे कि अरे ये इनको ये शूद्र था कर इसको पढ़ने दिया नहीं, ये कास्टिज्म था, it is not because of casteism, because ऐसे करने से then everything gets diluted. The Vedic का उसका जो importance था, उसका जो सिग्निफिकेंस है वो डाइल्यूट हो जाता है, जैसे अभी हो चुका है, राइट? वी आर ऑलरेडी सीइंग दैट वेरी लाइव एग्जांपल. जो शूद्रास वो पढ़ते हैं मंत्रों को, ये करते हो, इट इज ऑल डाइल्यूटेड. नो वन नाउ इन नो वन एक्चुअली नोज, नो कॉमन मैन एक्चुअली नोज कि व्हाट आर वेदास, वेदास में क्या है, वेदास क्या है, उनको कुछ पता नहीं है. उनको सिर्फ पता है वेदास में लिखा हुआ रहता है, मतलब वो फॉलो करना होता है. वेदास में हम देवताओं की पूजा करनी चाहिए मेंशन किया रहता है, मतलब इस तरीके से स्पेकुलेट किया जाता है, किसी ने बोला रहता है सुनते वो लोग. देयर इज they are totally misguided, common totally misguided. Why? Because Shudras take up the business of Brahmanas. So when I say Shudras and Brahmana, I'm calling out their qualities, not their birth, because birth से Shudra Brahmana होते नहीं है. We have to understand it. So Shudras took up the work of Brahmanas और इसकी वजह से पूरा dilute हो गया, because Brahmanas require to be a Brahmana, you need a different level of consciousness. Your consciousness right now as a Shudra is at a very low level. If you try to take up their work as a conscious, you will mess it up. जैसे कुक का जो स्किल सेट रहता है काफी बढ़िया रहता है खाना बनाने का, बराबर. अगर मैं जिसका स्किल सेट खाना बनाने का एकदम जीरो है, कुछ नहीं, मुझे टेक्निक सच में कुछ नहीं आता है खाना बनाना, तो अगर मैं वो करने जाऊंगा आई विल मेस अप थिंग्स. मेरी मॉम बाहर का कभी खाती नहीं. एक बार मैं अबू धाबी में जब खुद खाना बनाना स्टार्ट किया, मैंने जब घर पे मेरे मॉम को बना के दिया एक स्पेशल आइटम करके, मेरी मॉम ने आधे खाने में उसने बाहर से खाना करके ऑर्डर कर दिया. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट हैव दैट स्किल सेट, व्हेन यू ट्राई टू डू इट यू मेस अप थिंग्स. सिमिलरली कॉन्शियस के लेवल पे भी इट अप्लाइज वेरी मच, वेरी ट्रू, कि अगर वी आर लो कॉन्शियस, ट्राई टू डू समथिंग, इमिटेट समथिंग विद हायर कॉन्शियसनेस, we actually will end up screwing up all the things. So this is why Shudras were not allowed to do the Vedic hymns, but unfortunately people with low knowledge, they took it as casteism, because they do not understand what are Vedas, what are Varnashramas, they do not understand it, and they took it as casteism and they started अपने बुरा भरा करना स्टार्ट कर दिया. मनुस्मृति को इसको उसको बुरा करना बोला, क्योंकि उनको खुद को नॉलेज नहीं है. जो मनुस्मृति और बाकी सब चीजों को बुरा भला कहते हैं, उनको खुद पता नहीं, उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है. अनफॉर्चुनेटली अंडर प्रॉपर गाइडेंस दे आर नॉट रेड. एक दो लाइन उधर से उन्होंने उठा के किसी ने बताया था और वही लाइन को पकड़ के बोला कि पूरा शास्त्र खराब है, बिकॉज दे वर द विक्टिम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. किसी दूसरे इंसान ने उसको गलत इंटरप्रेट करके ब्राह्मण और शूद्र उन्होंने ये कर दिया था, लो कास्ट हाई कास्ट करके, और उसके वजह से जो लो कास्ट वाले थे उनको, मतलब बाय बर्थ कास्टिज्म की बात करें, उनको लगा कि यार ये मेरे साथ बुरा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस टू लाइंस, इसलिए ये शास्त्र ही गलत है. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन शूद्र डील करेंगे, खुद को आपस में छोटा सा घर जैसे बच्चे खेलते हैं, वैसे खुद को आपस में छोटा सा, खुद को ब्राह्मण बोल के शूद्र बोल के करेंगे. दिस इज व्हाट ऑट टू हैपन, दिस विल हैपन. There is no escape from it, and this is called degradation, and this will degrade further. इसलिए वर्णाश्रम is very 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 important backbone of the society of the Vedic Vedas. The main one of the important thing of Vedas is varnashrama. When you follow varnashrama, things, the society is actually very good. I mean, we are not talking about devotion now, that is at a upper level, but अगर normally भी इंसान अगर जीना चाहेगा, वर्णाश्रम is very 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 important. It is the backbone. इसलिए प्रभुपाद वर्णाश्रम में काफी स्ट्रेस किया करते थे हमेशा. So this is what Prabhupada has mentioned. He has told very interesting fact, very interesting things in this, in his purports. So with this, we will end our chapter, 12th chapter. So we are ending our 12th chapter. So we will do a quick. सतीश प्रभु, आप आज के सेशन का समराइज करने वाले क्या? आप प्रभु जी, आप नोट्स निकाला मैंने. Okay, then just give me 2 minutes, Prabhu. I will quickly summarize till what we have done now. Okay. So 12th chapter में what we spoke about is Emperor परीक्षित महाराज के बर्थ के बारे में वहां पे बात किया था.
सो वहां पे नैमिषारण्य के जो सेजेस थे उन्होंने इकट्ठे होकर उन्होंने क्वेश्चन वापस वो टॉपिक पे लेके थे। द वर्ड वापस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड टाइम हुआ था, परीक्षित महाराज के बोला था। तो सुत गोस्वामी ने पहले युधिष्ठिर महाराज के उनको ग्लोरीफाई किया था, और उसके बाद किस तरह से उन्होंने पूरे पृथ्वी पे कैसे उन्होंने राज्य किया था कि अच्छी तरीके से, वो सब बताया था। एंड देन उन्होंने एक बताया कि जो परीक्षित महाराज को जो विजन मिला था भगवान के, जो जब उत्तरा के कोख में थे, उनके बारे में बताया था। बाद में परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में बताया, और कैसे युधिष्ठिर महाराज ने उनका सेलिब्रेशन किया था, सारे जो लर्न ब्राह्मणास को वगैरह बुला के, ताकि मतलब वो बता पाए कि ये जो नेक्स्ट राज्य है वो लेने लायक है कि नहीं करके। और उन्होंने गुणगान किया कि किस तरह से ये तो स्वयं वो व्यक्ति है जिन्होंने, भगवान ने उनकी रक्षा की थी। और युधिष्ठिर महाराज के इस इंक्वायरी के लिए, क्योंकि वहां पे राजा ऐसे किसी को मेरे बेटा है तो उसको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं था, ये वो लायक है कि वो राज्य को संभाल पाएगा, वो उत्सुकता थी उनमें। और टू इज प्लीजेंट, आई मीन उनको जो मिला तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, जहाँ पे सब ब्राह्मणा ने बताया कि कैसे किस तरीके से उन्होंने जो उनके एंसेस्टर्स है जो बड़े बड़े सीबी वगैरह, उनसे कंपेयर किया था, कि उस तरह से वो दे ग्लोरीफाइड हिम, कि उस क्वालिटीज को परीक्षित महाराज के कि ऐसा है। और उनके फ्यूचर, फाइनली उनके फ्यूचर डेथ जो होने वाला है, कि उनके बारे में भी काफी कुछ बताया था। और बाद में उनको काफी कुछ अच्छे सारे जैसे हम लोग रिटर्न गिफ्ट, वैसे उस तरीके से उनको दक्षिणा देके उनको वापस वो ब्राह्मणा चले गए थे। और परीक्षित बड़ा हुआ, उनके क्वालिटीज युधिष्ठिर महाराज के गार्डियनशिप में बेसिकली बड़े हुए। एंड देन युधिष्ठिर महाराज ही फॉर हिज ओन सिंस ही डिसाइडेड टू परफॉर्म सम सैक्रिफाइस, जो युद्ध के वक्त हुआ था। So he did Ashwamekha Yagya, and then they had to collect wealth which did not have, and then Krishna guided them to get this unproclaimed wealth, जो अर्जुना को and that is why he's called Dhananjay, the acquirer of the wealth. और वापस वो इसमें आ गए थे। So over to you, Satish Prabhu, आज का सेशन का, if you want to do a quick recap. Prabhuji, major part you covered, so I will just the beginning how the Sanaka Rishi asked them the birth of Parikshit Maharaj and about him. Then we saw the expert in astrological knowledge. Then Yudhishthira Maharaj when performing the horse sacrifice. Then Prabhupada also tells us the Vedas, the storehouse of all knowledge. So we saw the examples of our like Ferrari and auto rickshaws. We are meant to do the spiritual self-realizations, not to get stuck in Jalma Mrityu, this life, beyond the eating, meeting, and sleeping. So we saw in the Bhakti Yuga, this age is like where the like cycle of yugas, like where the Krishna took the birth, Chaitanya Mahaprabhu's 5,000 years before also. Then we saw the astrologies, the Vedas. There are two parts, astrology and pathology. Vipras, we saw it. In astrology and pathology, so you have explained also the example of this Ajban, so how the people are telling us to do the worship of the some gurus or some persons, even which is not mentioned in the Shastras. And the Vipras, they are expert in knowledge of karma kandas. Brahmanas are expert in spiritual knowledge, transcendental knowledge. So department of knowledge, we saw there are three kandas: karma kanda, jnana kanda, upasa kanda. So karma kanda is where we are doing the materialist activities. Jnana kandas, you have explained us like that. They will tell us about achievement of all these things, how the things perform everything. But they will not tell us like exactly who is the Krishna or the Vaishnava's bhakti. But in Upas kandas, it's bhakti is devotional service for Lord Vishnu. So, and then we saw the example of Vaishnava. Vaishnavas are beyond the Varnashramas. So that's the thing. And then we have explained all these things, sacrifice of horses and cows, what are the use of the sacrifices, which are benefited, so they will get immediately the human life. But now in the people in Kali Yugas, they are not aware about all the things. So they used to do they follow the Shastras in different ways. So that's why the Bhagavan Buddha came and then he asked to keep the Shastras beside and follow this non-violence path. So that's the thing, Prabhupada. And then another we saw is how the Prabhupada was also given the guidance by his father, the deity is given worship over Radha and Krishna's and how he was. And so we have to do the similar roles also.
We have seen the example of the Michael Jackson's also, how these spiritual guys, before he used to do everything, but when he's entered his college life, he forgot all these things. And then he got some shot there in Michael Jackson's, and he again start serving all these things, temple services, deity worships and everything. Yes, Prabhuji, Hare Krishna, this much. Wonderful, wonderful. Hari Bol, Prabhu. Nicely summarize it. Thank you, Prabhu. So I will stop the recording. So thus we are ending the 12th chapter, Hari Bol. Any questions, any thoughts before I stop the recording? Jay. I take it as a no. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada.